हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th का जो है सोशल साइंस, जो कि चैप्टर पहली है हिस्ट्री का। इसमें आज हम करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी इतिहास का जो है चैप्टर फर्स्ट, फ्रांस की क्रांति। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे 9th क्लास में हैं और उनका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, उसी व्यू से जो है ये क्वेश्चन बनाई जा रही है। ठीक है, तो अच्छे से इसको सोचिए, समझिए और इसको नोट डाउन अपने कॉपी पे कीजिए, तभी जो है आप अच्छे एग्जाम में जो है अंक प्राप्त कर सकते हो। त्रिपाण सेंटर का ये मानना है कि इससे अधिक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता और इससे अधिक कुछ आ नहीं सकता। आएगा भी तो इसी क्वेश्चन को जो है बना चढ़ा के दिया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जो है समझिए, सोचिए और विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। The next important question arrive here 8th. There is a most important question here. Write a short note of Napoleon Bonaparte. There is a most important Napoleon Bonaparte. There is a short note. For the most important for the exam view, there is question of the short note of Napoleon Bonaparte. The answer here in 1804. 1804 is Napoleon Bonaparte is a crowned to himself as a Empire of the France. There is a most important 1804 Napoleon Bonaparte is crowned to himself as a European of France. His crown is the most important. And the first point here, in the administrative field, he had incorporated many revolutionary principles which is made the whole system more rational and efficient. You know that in the administrative field had incorporated many revolutionary principles which made the whole system more is rational and efficient. Second point is the most important here, a code of 1804. The civil, what is the civil code of the 1804? Now as there are Napoleon code. Now as the Napoleon code did the way all the privilege is based on birth, establish equality before the law and secure the right to the private property. You know that there is a civil code of 1804 is now as the Napoleonic code, and did away all the privileges based on birth, establish equality before the law and secure the right to private property. And third point here, he introduced a uniform system of weight and measurement provided by the decimal system. The Bonaparte is the most important introduce here the informal system of weight and measure to the provided by the decimal system. This is the most important revenue. And initially many believed that Napoleon as the liberate who would be bringing a freedom for the people. Initially many are believed Napoleon as a liberate who would be a bearing freedom for the people. The fifth point here, many of these reforms were exported to be resigns under to the French control, and this left a long-lasting effect on the society. You know that many of the reforms were exported to be resigned and under the French control, and this left a long-lasting effect on the society. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ होना चाहिए कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और इसने कैसे स्टेबलेट किया। तो ये क्वेश्चन कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से, और एग्जाम में आता है कि हु इज नेपोलियन बोनापार्ट, सिंपल सी बात पूछ लिया जाएगा और आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि हम तो पढ़े थे भाई कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, और ये तो ये बोल रहा है कौन था। लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन में जो है सारी बात आ जाता है। कहते हैं 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहना था। समझ गए ना कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस के साम्राज्य के रूप में ताज पहना था, यानी राजा बना था। कब बना था? 1804 में। किसका? किस देश का? फ्रांस के सम्राट के रूप में। तो पता लग गया नेपोलियन बोनापार्ट कौन था जो कि ताज पहना था फ्रांस के सम्राट के रूप में 1804 में। कहते हैं प्रशासन क्षेत्र में उन्होंने कई जो है क्रांतिकारी सिद्धांतों को शामिल किया। कहते हैं जब वो राजा बना
तो बहुत चीज़ों के सिद्धांतों को जो है अपने रूल रेगुलेशन क्रांति में शामिल किया, जिससे पूरी व्यवस्था को और अधिक जो है तर्कसंगत और कुशल बना दिया। यानी काफ़ी हद तक उसने डेवलपमेंट किया। कहते हैं डेवलपमेंट की कमी नहीं थी, बहुत हद तक डेवलपमेंट किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यही बताता है कि 1804 के उनके नागरिक संहिता यानी नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता है। यानी 1804 में जब वो ताज पहना तो इसी को उसने कोड बना लिया, जो सभी नागरिकों के लिए जरूरी था। नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता था। ने कहते जो भी कहते हैं 1804 के उनका जो है नागरिक संहिता ने जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकारों को हटा दिया गया और कानून के समक्ष समानता स्थापित की और निजी संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया। बोनापार्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकारों को हटा दिया कि जिसका जन्म है वही उसका संपत्ति का मालिक होगा, ऐसा उसने हटा दिया और कानून के समक्ष समानता स्थापित किया और निजी संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया। देखते हो आप, यही बात सब जगह ये निर्धारित होती है कि जो माता पिता के बच्चे हैं उन्हीं को संपत्ति जाएगी। तो ये बातों को उसने जो है खारिज कर दिया और कानून समक्ष सबको जो है समानता का स्थापित किया और निजी संपत्ति का अधिकार भी सुरक्षित किया गया। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह था कि उन्होंने जो है दशमलव प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले भार और माप के एक सामान्य प्रणाली की शुरुआत की। तो कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि उन्होंने दशमलव प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली भार और माप की एक सामान्य प्रणाली शुरुआत की। इससे क्या होता कि सब जगह जो है वेट मेजरमेंट एक जैसा बनाया गया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी नेपोलियन बोनापार्ट के जो है राजा बनने के बाद। उसके पश्चात चौथा क्वेश्चन यही बताता है कि उन्होंने जो है शुरू में कई लोग नेपोलियन को एक मुक्तिदाता के रूप में जानते थे जो लोगों के लिए स्वतंत्रता लाएगा, ये विश्वास था। कहते हैं नेपोलियन के बारे में जब राजा बना तो सभी का यही विचारधारा था कि नेपोलियन को जो है एक मुक्तिदाता के रूप में मानते थे कि ये मुक्ति दिलाएगा हमें अत्याचारों से, जो लोगों को स्वतंत्रता लाएगा। ये विचारधारा थी वहाँ के लोगों का। उन्हें कई जो है सुधार फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नियत किए गए थे और उनका समाज पर जो है दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। कहते हैं नेपोलियन का समाज पर काफ़ी लंबा प्रभाव पड़ा। तो लंबा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसने बहुत कुछ चेंज भी किया था। तो जर्नल सी बात है कि इसका प्रभाव तो जरूर देखने को मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और इसने कैसे जो है ताज पहना और कैसे उसने जो है समाज में सुधार करने की कोशिश की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, और आपको भी ये बात ध्यान रखना कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान हिस्ट्री सेंटर का हेल्प करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। और लगाने से ये होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा आपके साथ में पढ़ता है तो वो जो है अगर आपके आगे बैठता हो या पीछे बैठता हो, अगर उसने भी इस वीडियो को देखा होगा तो उसको भी याद होगा ये क्वेश्चन और आप एग्जाम में जाओगे, कुछ क्वेश्चन आपको माइंड में नहीं आएगा और गलती से आप किसी बच्चे थोड़ा सा भी पूछोगे तो फटाक से आपको जो है सारी नॉलेज आ जाएगी और फटाक से जो है क्वेश्चन आप लिख लोगे। तभी तो कहता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए, जिससे उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो हो सकता है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अनभिज्ञ रह जाओ, आपको क्वेश्चन ना मिले और वही एग्जाम में आ जाए, फिर तो हो जाएगा ना आपके साथ बुरा। तो इसलिए त्रिपाणी से ये कहता है कभी आपके साथ बुरा ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेने में ही फ़ायदा है।